So guys, we are starting with the chapter called Startup and Startup Finance. Exam weightage 4 marks. Yes, every time they are asking you this chapter in your examinations, and it is I have bifurcated this chapter into two parts. One is startups and startup finance, and then looking forward to the part two to it, that is venture capital. तो मैंने वेंचर कैपिटल को एक अलग छोटा सा पार्ट कर दिया है बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडिंग इज वेंचर कैपिटल, उसको पार्ट टू में रखा है. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, पहले हम फोकस करते हैं स्टार्टअप्स पे. तो क्या हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ द एवर चेंज यू कैन से दैट very growing very very growing opportunities for startups in India, and even the financing to it, the need arises to have our finance portion being more dynamic and to add some understanding to startup finance. There are many chartered accountants who are into the business and they are into the startups, and even they have been able to execute it quite fine. But we can say that the overall ratio of success in startups in India is approximately 5% to 7%. But the 95% of startups in India are somewhere down the line fail at the end of the day. If you ask about our government, even our government has made the Startup India scheme giving some benefits, some tax reliefs, some exemptions to the startups. तो वो भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा, and we'll be understanding the meaning of startup, the problem involved with respect to startup, and more importantly the manner in which startups can raise the finance. The manner in which startups can raise the finance. So let's start the introduction to startup finance. You will love it. And more importantly, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड की है just to make it more interesting. यहाँ पे बहुत जगह पे मैंने लिंक शेयर की है आपके साथ, and there's two videos also set up to the same. So what will happen? It will just for some people who wants to go for more practical insight, because there are many startups like Paytms and so many more, or Olas, etc., which you already know how they have been working for, if they're successful or not. तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल फील भी आपको मिलेगा. इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, उस पर आप और एक घंटा इन्वेस्ट कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Now what happens first is we are basically trying to learn what is startup. Now you can say that startups, there is no definition to startup. Yes, in finance there is no exact precise definition to startup. We can understand the meaning of the word startup based on you can say the business which they are basically generating. To be more precise, we can say that if if there is some innovative idea which makes the life of a common man or say society simpler as a whole, that is where the flavor of startup starts. मतलब ऐसा कुछ start करना, ऐसा कोई business idea develop करके execute करना जहाँ पे वो चीज़ पहले नहीं थी, या जब पहले थी तो वो इतनी simplified नहीं थी. So trying to make that innovative part which has high growth along with high risk, but naturally that's something what we can say startup is all about. Let's check it out here. It's a startup focuses on the market with innovative ideas, many a times disrupting the industry with the help of its creative solutions for a particular product, services, or process. अब जैसे कहने का देयर इज नो डेफिनेशन स्टार्टअप एज सच, राइट. तो स्टार्टअप से हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि वो एक इनोवेटिव आइडिया है जो जहाँ से हम कोई सोल्यूशन ले पाते हैं फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेसेस. ठीक है. नाउ when they say the word disrupting the industry, it's referring to what, something which is not there in the industry, a game changer. तो a startup could always be a game changer. हम लोग आगे जाकर बहुत कुछ देखेंगे इस लेवल पे. जैसे कि आप ओला उबर की स्टैंडर्डली बात करो, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, it changes the way we travel, right? So it's like again a game changer to that. You have Make My Trips, IBBOs, Paytm wallets, Google. तो ये सब क्या हो जाते हैं, the moment you are changing the nature in which the system of payments was going, system of traveling was going on, system of food ordering was going on, and here you say that's a startup coming up for medicals, for food delivery, so you can say medicine delivery, your generic medicines का stuff, and so on. तो मैंने यहाँ पे कुछ videos भी add किए इसके ऊपर जहाँ पे the some innovative businesses which you will have not thought of, even there the startups are basically designed for. Moving forward,
अब स्टार्टअप क्या है ना, दैट्स नॉट द चैप्टर बिकॉज वी आर डूइंग फाइनेंस नॉट स्टार्टअप्स हियर, बट स्टार्टअप की फाइनेंसिंग कैसे होगी ना, दैट्स द चैप्टर ऑल अबाउट. तो द सेकंड पॉइंटर टू योर इंट्रोडक्शन इज स्टार्टअप फाइनेंसिंग, राइट? नाउ व्हाट इज स्टार्टअप फाइनेंसिंग? इट्स लाइक दिस कि you can term the word initial infusion of money needed to turn an idea into reality. तो the thumb rule here is कि जब एक स्टार्टअप शुरू होता है, the problem which every business may face is initial funding, the initial capital. तो स्टार्टअप फाइनेंसिंग को फंडिंग कैसे मिलेगा, स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए क्या क्या रास्ते हैं फंडिंग के, एंड व्हाई इज इट डिफरेंट टू कॉल इट कि वी वांट टू रेज अ मनी फॉर स्टार्टअप. बिकॉज अगर आप कोई बिजनेस के लिए लोन लेने चाहते हो या फंड देने चाहते हो तो यू डोंट मेक द मैकेनिज्म ऑफ रेजिंग फाइनेंस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस. नहीं होता. से कि कंपनीज को लोन चाहिए तो उसका जो इन्वेस्टमेंट बेसलाइंस है उस पर उसको लोन मिलेगा, द रिस्क एसोसिएटेड टू इट. बट स्टार्टअप्स के लिए अलग क्यों है? तो द रीजन वाई स्टार्टअप्स आर बेसिकली हैविंग इट्स ओन वे ऑफ फाइनेंसिंग इज the big banks etc are not interested to invest to a startup. The most biggest problem here is कि they will not invest in startups. The reason behind it, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास वो जस्टिफाइबल बेस नहीं है, उनका कोई कैसे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. तो बैंकर्स आर नेवर इंटरेस्टेड टू फंड समवन हु इज जस्ट लॉन्च्ड हिमसेल्फ. So the roads, you can say the roads to get money from banks is closed down for the startup companies. आप कहोगे मुझे एक नया टाइप का बिजनेस करना है, मेरे पास अच्छा आइडिया है और उसके लिए आई वांट सम इन्वेस्टमेंट्स. तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट, आपका वो बिजनेस हुआ नहीं है, आपने वो कभी भी वो इन्वेस्टमेंट बेसलाइन पे गए नहीं हो, तो क्या होगा कि देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर बाय द इन्वेस्टर्स या द बैंकर्स इन दिस केस विल नॉट बी हैप्पी टू इन्वेस्ट फर्दर टू इट. So that's the biggest problem what they face. Let's learn the lines. The reason is that when you are just starting out, you are not at the point yet where a traditional lender or investor like a banks in the debenture, you can say the public, that is debenture hold by way of debentures, bonds or public deposits, will be interested in you due to high risk of failure due to new and innovative ventures. मतलब ये दो रीजंस के कारण आपके अंदर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा. सो इट्स बेसिकली लाइक दिस कि नहीं चाहेगा उसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स या ट्रेडिशनल लेंडर्स नहीं चाहेंगे. अगर आप कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप कोई बैंक में एफडीज कर रहे हो, तो आप उस बैंक के नाम पे या आप उस इक्विटी रिलायंस इन्फोसिस टाटा में इन्वेस्ट करते हो, यू नो द कंपनी ना. अगर आपको कोई कहे कि भाई लाख रुपये डाल स्टार्टअप के ऊपर, तो आप 100 बार सोचोगे, क्योंकि आप उस ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स में आप यू आर इनटू ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स जोन एंड you need to find some new way out to it. This is where innovative and informal ways of raising finance for a startup company becomes imperative. मतलब यहीं से वो, this is the thumb line why we actually require some informal and innovative ways of raising finance for a startup company. तो ये 4 पॉइंटर्स आपको बहुत सी चीजें बता देते हैं. नंबर 1, स्टार्टअप होता क्या है. स्टार्टअप एक ऐसा वेंचर है जहाँ पे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स, कोई ऐसे सर्विसेज, कोई ऐसे प्रोसेसेस कोई इंडस्ट्री में क्रिएट करना या रिक्रिएट करना विच मेक्स द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन सिंपलर. दैट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ अ स्टार्टअप. मूविंग मोर फॉरवर्ड, स्टार्टअप फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसे कोई इनिशियल बिजनेस चैनल्स के अंदर पैसा डालना, इन्फ्यूज करना और उसके जो आइडिया था उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना. उसके बाद हम इस पे आते हैं कि क्यों उसे पैसे कोई बैंकर नहीं देता. तो बोला बैंकर तो ट्रेडिशनल लेंडर है, वो तो फंडिंग उनको देता है जिसको वो पहचानता हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसका कोई स्टैंडिंग हो मार्केट में. नए नवेले लोगों को कोई बैंकर पैसा नहीं देता बिकॉज बैंकर्स डोंट ऑपरेट इन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स. तो बिकॉज ऑफ दैट वो रिस्क, आप सोचो ना 100 में से 95 स्टार्टअप तो अगर नहीं चल पाते हैं तो बैंक तो उठ जाएगा ऐसे सिचुएशंस में. तो वहाँ पे तो बैंकर्स के नाम नहीं आते. एंड देन हम कहीं और जाते हैं. जब हम कहीं और जा रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, वही हमारा चैप्टर है. ठीक है, अब आता है पहला पार्ट, स्टार्टअप फंडिंग और मोड्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस. अब स्टार्टअप फंडिंग और मोड्स मतलब आपका जो लास्ट पॉइंट आपने ऊपर पढ़ा उसका कंटिन्यूटी शुरू होता है कि साला फंडिंग ले तो ले कहाँ से.
बैंक ने दरवाजे बंद कर दिए, एनबीएफसी इसमें बीच में हाथ डालेगा नहीं, तो और पब्लिक से पैसा, पब्लिक कंपनी तो आप हो नहीं, क्या डाल दो को वहां पे, तो ये 3 रास्ते तो हमारे बंद हो गए। तो बचा क्या? तो जो बचा है उसी को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि हम हमारे, अगर हमारा कोई क्लाइंट स्टार्टअप फंड, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है तो उसके साथ हम कैसे डील करें, या फिर इफ वी वांट टू डू आवरसेल्फ सम स्टार्टअप्स इन द फ्यूचर, देन यू मे फॉरवर्ड। Trust me, guys, if you are having some ideas to you, I'll be happy if you can use this content and try to have your own way of getting through it. And I'll assure you कि अगर कुछ अच्छा कंटेंट आपको डेवलप करना है तो हम उसे भी जूम पे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फंडिंग पे द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है ना, बूटस्ट्रैपिंग का बेसलाइन होता है कि अपने दम पे आगे बढ़ना, मतलब अपने दम पे फंडिंग लेना। It's like it is also known as a self-funding way, an effective way when a startup when starting a new business। मतलब ये हो जाता है सर कि what is bootstrapping? तो कोई कोई पैसा नहीं दे रहा है तो क्या करे? अरे भाई तू जॉब कर, तेरा खुद का सेविंग्स क्रिएट कर, या पर्सनल लोन ले ले। आपको धंधे के लिए लोन तो नहीं मिलेगा, बट शायद तक आपको पर्सनल लोन आपके आईटीआर्स पे, आपके लास्ट 3 इयर्स के सैलरी स्टेटमेंट्स पे आपको पर्सनल लोन कोई बजाज फाइनेंस जैसी इंस्टीट्यूट्स दे सकती है। तो ये कहता है कि जनरली स्टार्टअप्स में क्या होता है, बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर देते हैं, गाइस लाइक रतन टाटा एंड सो मेनी टू दैट। उसके लिए भी मैंने कंटेंट बनाया आगे। तो उससे पैसा लेने से क्या होता है ना, पब्लिक मतलब द कंपनीज आर बेसिकली स्पेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या, वो कैशबैक्स देना, डिस्काउंट्स देना, एंड जस्ट मूविंग ऑन विद दैट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो पैसा आपका खुद का होगा, अगर वो पैसा आपके पर्सनल फाइनेंस से होगा, तो आपके पेमेंट करने के तरीकों में भी चेंज आएगा। आप यूजलेसली पैसा वेस्ट नहीं करोगे, आप बहुत केयरफुली अपना खर्चा करके धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो बूट स्ट्रैपिंग इज द मोस्ट बेसिक वे, कहा जाए ना, तो अपने पैसों से अपना धंधा शुरू करो, कोई काम में आने वाला नहीं है। दैट्स द आइडिया ऑफ द वर्ड बूट स्ट्रैपिंग। जो माँ बाप सिखाता है ना, वही ये टेक्निकल टर्म सिखाता है हमें, बूट स्ट्रैपिंग। नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि जैसे ही आपने अपने पैसों से शुरू किया, धीरे धीरे यू मे ग्रो एंड देन यू कैन अट्रैक्ट मोर ऑफ इन्वेस्टर्स टू इट। What is the advantage of bootstrapping? It is a more cautious approach and it will curb wasteful expenditure। ये जो आपने देखा है, बहुत सारी कंपनीज इनिशियल आती है, 6 महीना फंडिंग होता है, कैशबैक्स, डिस्काउंट्स, फ्री ट्रिप्स एक्सेट्रा दे के 6-8 महीना चल जाती है। जैसे ही वो सब बंद हो जाता है तो उनका ग्रोथ भी बंद हो जाता है, एंड फाइनली इफ दो डोंट गेट न्यू फंड्स इंसर्टेड टू इट, देन दे गॉट क्लोज डाउन। ऐसे आपको हजारों मिलेंगे ऐसे सिचुएशन में। इफ यू से फूड पांडा, जोमेटो और स्विगी के आजू बाजू वो भी था, जैसे ही फंडिंग बंद हो गया तो एवरीथिंग गॉट क्लोज डाउन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड कि अब बूट स्ट्रैपिंग पर्सनल लोन से करो, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड लेवल ऑफ बूट स्ट्रैपिंग जो हम जा सकते हैं वो है ट्रेड क्रेडिटर्स। ना बूट स्ट्रैपिंग टू ट्रेडर्स मतलब क्या, अपने पास पैसा नहीं है लेकिन अपने को ये पता है कि ये धंधा तो करने के लिए हमें ये माल लगेगा, या फिर उस माल को खरीदने के लिए पैसा लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द मनी वी कैन जस्ट ट्राई टू मीट द की मैनेजर्स और द ओनर्स ऑफ द पीपल टू फ्रॉम हुम वी हैव टू बाय द गुड्स। उनको अपने प्रोडक्ट से अपने अपने चैनल पे कन्विंस करना कि व्हाट वी डू, एंड ट्राइंग टू गेट सम क्रेडिट फ्रॉम दिस पीपल, मतलब सप्लायर से क्रेडिट लेना। सप्लायर से क्रेडिट लेना मतलब क्या, जो अपना, जिससे हमें माल लेना है उसको कन्विंस करना और उससे उधारी पे माल लेना। हमने ये सीखा होगा कि मेनी मोड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस एंड वन ऑफ द मोड ऑफ रेजिंग फाइनेंस इज क्रेडिट्स। जितना ज़्यादा उधारी मिला, इट्स वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आप ये करो, जनरली आप डायरेक्टली दुकान में आपके उसके सेलर से मिलोगे तो शायद तक वो आपको फंडिंग ना दे, बट अगर आप उसके ओनर से या आपके उसके जो टॉप मैनेजमेंट से मिले और आपने आपके अपने आपके कम्युनिकेशन से उन्हें कन्विंस किया, तो आप वहाँ से भी कुछ ज़्यादा उधारी लेके अपने धंधे के फंडिंग को इनडायरेक्टली फंड कर सकते हो। नंबर 3 ये कहता है, या तो आप आपके प्रोडक्ट्स, एसेट्स, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट को रोक के लीजिंग पे चले जाओ, जिससे आपका कॉस्टिंग इन इनिशियल कैश आउटफ्लोज 15% या 10% तक रहेगा इंस्टेड ऑफ 100%। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट पार्ट में कहता है कि जितना भी माल आप बेच रहे हो
एंड इफ यू ऑल्सो गिविंग क्रेडिट ऑफ 2 मंथ 3 मंथ, तो उससे फैक्टरिंग को यूज करके या डिस्काउंटिंग का यूज करके क्या कर लो, वो फंडिंग को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो फटाफट. तो योर मनी ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल विल बी मिनिमम. इट विल ऑल्सो हैव अ कॉस्ट. फिर आपको फैक्टरिंग एनालिसिस करना पड़ेगा कि फैक्टरिंग करूंगा तो क्या होगा, फैक्टरिंग नहीं करूंगा तो क्या होगा. और मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपका कोई रास्ता बचा ही नहीं रहा पैसा रेस करने का, देन योर फैक्टरिंग बिकम्स द लास्ट वे टू डू दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग में आप जो चीज़ें ऐड कर सकते हो वो हो जाता है आपके दोस्तों की हेल्प लेना. लाइक इनडायरेक्ट वे ऑफ सेल्फ फंडिंग काइंड ऑफ अ थिंग. पर्सनल फाइनेंस वाला बात के दोस्त ने धंधा दे के पैसा नहीं देते हैं, दोस्त दोस्ती को दे के पैसा देता है. भाई बहन, मामा मामी, अंकल आंटीज या फ्रेंड्स वॉट एवर, तो वो लोग से पैसा लेना इज नॉट ऑन क्रेडिबिलिटीज. इट्स लाइक दोस्त, इफ समवन इज डूइंग इट एंड if he's your best friend, you will always have to support him for the same. That's how we say bootstrapping is not that only self funding. It's about self funding through your own savings or through your personal finances. When you come to personal finance, you may get personal loans, you may get personal loans from your friends, relatives, etc. You may also use creditors to the best possible way. You may, instead of capex investor, you may go for leasing, and instead of making your debtors receivable period more, you may go for factoring to the same. Every possible part needs to be evaluated, analyzed, and then a decision making has to be made whether the funding through the same should be made or not. तो अभी आपके एग्जाम में शायद तक बूट स्ट्रैपिंग आया 2 मार्क का, यू मैं बूट स्ट्रैपिंग में 4 मार्क्स, तो मैंने उसको कंटेंटफुली इतना ही कंटेंट पे डाला है जिसमें सब कुछ कवर होता है इन अ स्पैन ऑफ से 2 to 4 मार्क के कंटेंट के लिए. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एंजल इन्वेस्टर्स. नाउ ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या है? नाउ इफ यू इफ आई ट्राई टू गिव यू सम लिस्ट हियर, मैंने टाइम्स नेक्स्ट के पोर्टल पे आपका टॉप 50 एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया 2020 का एक थीम लाइन दिया है. अब इसमें है ना, हमें वो लोग, लिंक है, आप भी जब भी पढ़ोगे आप ओपन कर सकते हो. आपको ये लिंक्स जो है पीडीएफ पे भी मिलेगी, जस्ट कि आई वांट सम क्लैरिटी टू मोर टू इट. सी, let's understand from this times next portal. Angel investor in India is an individual investing money in a startup at that stage. That's very important term, at an early stage. They believe strongly in founding a team and aiming to build the product. The angel investor can be a single professionals, that may be a doctors, lawyers, etc. They're inspired and delighted by young entrepreneurs working on a product that will change the way business or the sector operates. तो होता क्या है ना, दिस आर द एंजल, मतलब भगवान, मतलब फरिश्ते, यू कैन से दैट बेटर. तो मतलब ऐसे फरिश्ते जो आपको कोई, जब आपको कोई 1 रुपया दे नहीं रहा था तब कोई आपको आपको 10 करोड़ दे दे तो वो आपके लिए एंजल हो जाता है. तो ये है ना, सबसे हाई रिस्क स्टेज पे, दैट इज अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करता है. आइए देखते हैं किसी एंजल इन्वेस्टर्स का बेसलाइन क्या होता है. सी, दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट when the business is basically at its very early stage, right? Now let's understand कौन से, these are the names of the angel investors. We'll take some of them, and यहाँ पे आप कभी भी अपना टाइम डाल के पढ़ सकते हो कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है. जैसे हम बात करें अब सुनील कालरा की, राइट? तो देन यू हैव इंस्टामोजो एज वन ऑफ द फेमस वन टू दैट, मोबाइल वाला, टारगेटिंग मंत्रा जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है. There are so many to that. I'll be taking some random names. The name of the angel investors, if you see here, this is one of the famous one, Ganesh Krishnan. Okay. Now talking to it, the biggest successful startup here comes to Big Basket. Take care. And that's something, a big investment made there to it. I want to move forward. Fatafat say. I hope you know this. We don't have to buy heart this. We just have to get some name going. क्यों? कल उठ के हमें कुछ करना हो तो काम में आए. This is someone who is basically a master stroke, Kunal Shah, a graduate from Wilson College in Mumbai with MBA from NMMS, right? अब इस बंदे ने जो यहाँ पे
it's a successful journey के an academy, you know it very well now. Razorpay, again a payment portal. So that's something better. You have Binny Bansal for Flipkart. ये ओला वाला बंदा अपना अर्बन क्लैब एंड ओला, कुणाल बहल, सचिन वाल, ये आपने बात की है अभी. आई जस्ट वांट टू फास्ट मूव फॉरवर्ड टू रतन टाटा. नाउ यू हैव MI, you have Paytm, you have Urban Clap. T-Box is something quite cool there. So there's Snapdeal coming up. Snapdeal is almost gone now, I feel. There was a wide statement made by Ratan Tata in this last 2 3 months back. If the startups will keep spending the money and misusing the money the way they are doing now, there might be the days where there will be no angel investors who will be interested to invest. क्या होता है ना, these people are investing money for its own business profitabilities or for the growing of the entire industry or the nation. Everyone has their own objects, but अगर आप उसको misuse करोगे ना blindly, तो फिर फ्यूचर वुड नॉट बी दैट ब्राइट. मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ पता है? मे बी अपने बच्चों में से कोई भी ऐसा हो सकता है कल जो ऐसा ड्रीम लेके चले. एक NMIMS का स्टूडेंट, NMIMS का पास आउट. इवन आपको मैंने एक अभी वीडियो भेजूंगा पिच राइट का. वहाँ पे CA has indulged into 2 new startups and having a funding of 18 crores in the first year itself. So if you are following your internships very well, if you have a dream to do some businesses, definitely आप धीरे धीरे इस सब के पीछे, it's a very good chance कि आपको भी, if you are in focusing on your business very well, you are inclined to that, funding will not be a problem. I tell you that funding will not be a problem. तो क्योंकि पैसा मिल जाएगा, धंधा करना है, business करो, and funding will be no problems in today's scenario if your business is quite fine. Anyways, that was just a feel to what was startup finance ka angel investor. Let us read now in theory's perspective. These are the individuals with surplus cash and keen to invest in upcoming startups. Angel investors provide more favorable terms compared to other lenders since they usually invest in the with the entrepreneur starting the business rather than viability of the business. मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम बिजनेस को देख के तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिजनेस अभी तक कुछ हुआ ही नहीं होता. इट्स जस्ट एन आइडिया. मतलब हम एंटरप्रेन्योर को देखते कि बंदे में कितना दम है. अब बंदे में दम है तो हम कर देंगे इन्वेस्ट एज कम्पेयर टू व्हाट बिजनेस वायबिलिटी. तो बिकॉज उस अर्ली स्टेज पे इट्स वेरी फ्यू पार्ट ऑफ वायबिलिटी यू कैन चेक. व्हाट यू कैन चेक द मोस्ट इज व्हाट that is the entrepreneur's experience, his last, what was he doing earlier, etc. If you see, if you don't do some project, आप इस पे कर दा एक बार. Byju's है, you have Byju's now. Byju's taking over. It's एक अपना छोटा सा भी पोर्ट. अभी आप बायजूस की बात करो, व्हाइट हैट जूनियर को जो टेक ओवर किया. व्हाइट हैट जूनियर वाज व्हाट अ स्टार्टअप. व्हाइट हैट वाज द स्टार्टअप. अभी उसने व्हाइट हैट जूनियर बेसलाइन पे it would take over. But this is all like invest. You can't imagine the valuation of White Hat Junior before 2 years. It was in just 5-10 crores और वो एक साल में 2 साल में 1,000 crores के ऊपर का वैल्यूएशन फेंकना. It's like unimaginable to that. Anyways, लालच तो नहीं कह सकता, मैं ये कहता हूँ it's something. If you follow your dreams, it is possible, especially in this age, to raise money for the same. Now, moving forward with angel investors here, these provide more favorable terms as compared to other lenders since they usually invest in entrepreneurs starting the business rather than viability. That's fine. Angel investors are focused on helping startups take their first steps rather than possible profits they may get from the business. Essentially, angel investors are opposite to venture capitalists. We agree with that. Venture capitalist comes up later. एक सक्सेसफुल प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद वेंचर कैपिटलिस्ट की एंट्री होती है. तब तक तो सिर्फ क्या है, एंजल्स है जो आपको काम में आते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स आर आल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स एंड एंजल फंडर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स या सीड इन्वेस्टर्स और बिजनेस एंजल्स. These are affluent individuals who inject capital for startups in exchange of ownership in equity or in terms of convertible debt. तो एक पार्ट हो गया कि ये लोग कौन है पता है. अब मैं अपनी भाषा में बताऊँ ना, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है. आई टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस. हाउ डज इट हैपन? Suppose if you have with you 10 lakh rupees
as savings. What will be your first thing you will do? I'll tell you what. You'll be securing it by having some life insurance policies. You'll be securing it by having risk-free investing PPF, Life Insurance Corporation of India, some investing in some gold. Then you have 50 lakh, 80 lakh, and 1 crore. आप धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे सेफ्टी वाला पहले, having a property. Then you will start with your mutual funds. I'll tell you why. Mutual funds is not that okay, it's not risky. So generally this stuff starts up after having some minimum investments in your FDs, LICs, PPF, gold, and then keeping bit थोड़ा 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 in your mutual fund stuff. That's what I feel. बट जैसे ही आपके पास पैसे आ गए 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, अब आपको कोई बोले सर एफडी कराओ ना 6% पे, 5% पे, 4%, क्या करूँ एफडी, क्या करूँ 4 टका कमा के, ऐसा एल आई सी सर मेरे पास 7 भी है और अगले 7 पीढ़ी के लिए भी है, एल कितना करूँगा। आप बोलोगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना देता है, 10 टका, 15 टका, क्या करूँ, मज़ा नहीं आएगा। अब आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि या तो आपको वो 100 करोड़ का जीरो करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो वो 100 करोड़ का 1000 करोड़ में ही मजा आता है। मतलब देन ये एंजल क्या है पता है, एंजल एंजल किसके लिए है, स्टार्टअप कंपनीज के लिए एंजल है। उनके लिए क्या है कि उनके अंदर इतना, अभी विराट कोहली को इन्वेस्ट करना हो तो क्या वो 8 टका 9 टका दिखेगा, वो क्या समझ गया 8 टका 9 टका देखेगा, नहीं। तो व्हाट हैपेंस हियर इज, तो इफ ही इज मेकिंग सम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो खुद इन्वेस्ट कर रहा है, खुद धंधा करने वाला लोग इन्वेस्ट करने बैठेंगे तो फिर वो 10-20 टका इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनको आर्या प्यार खेलना, इट्स लाइक अ कसिनो टू बी ऑनेस्ट। अब 100 करोड़ डाला और अगर 1000 करोड़ हो तो कुछ दम है, बाकी नहीं। आप येस बैंक में देखो, ये एसबीआई ने इन्वेस्ट किया, कोटक ने इन्वेस्ट किया, एक बार रेशो देखो, कौन से भाव पे शेयर लिए थे, क्या भाव पे बेचे, इमेजिन नहीं करोगे क्या बेसलाइन के प्रॉफिट्स येस बैंक के थ्रू, अभी की बात है, आप इमेजिन करोगे जब आप उसके नंबर्स देखोगे। तो दैट्स वाई एंजल इन्वेस्टर्स इतना रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है उस रिस्क को लेने की। सेबी भी बीच में आता है, सेबी गाइडलाइन, सेबी लॉ भी बीच में आता है एंजल इन्वेस्टर्स के लिए भी, हमारे लिए भी, बट वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। बट इफ़ यू लर्न सेबी, वहाँ पे भी रेगुलेशन है, कोई भी एंजल नहीं बन सकता, उसके भी प्रोटोकॉल्स है टू बिकम अ एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कमिंग टू वेंचर कैपिटलिस्ट। नाउ वेंचर कैपिटलिस्ट का बेसलाइन जब आएगा तो हमें और क्लैरिटी मिलती है किस बारे में, कि यार जैसे ही एक एंजल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट था वो एक स्टार्टअप पे है, एंड दैट स्टार्टअप एज क्लियर इज फर्स्ट स्टेज, बिजनेस पे आ चुका है, उसके पास कंज्यूमर्स है, उसके पास 6-8 मंथ्स का टर्नओवर है छोटा मोटा, एंड दैट्स वेयर द वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मतलब दीज आर द पीपल हु कम अप आफ्टर योर एंजल इन्वेस्टर्स, और कभी कभी टूवर्ड्स अलोंग विथ इट, कभी कभी, बट दिस आर पीपल हु आर प्रोफेशनली मैनेजमेंट। मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ पैसा डालते नहीं है, दे ऑल्सो गिव देयर एक्सपीरियंस, देयर आइडियाज, देयर कनेक्ट्स, देयर नेटवर्क्स, वो सबका यूसेज स्टार्टअप्स को मिलता है कि भाई फंडिंग के लिए अपने पहचान वाले हैं, मार्केटिंग के लिए अपने पास है, देखो क्या चाहिए, देखो कंज्यूमर्स के लिए एंट्री करना है यहाँ पे, अपने पास उधर भी सेटिंग है। मतलब ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स वो आर मैनेजिंग इट, द स्टार्टअप्स वेरी वेल इनिशियली, वो सब बिजनेस जिसने करके रखा है ना, वो लोग अंदर आ जाते हैं। वंस दैट इज इनसाइड इट, द स्टार्टअप गेट्स अ वेरी गुड बूस्टर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, also in terms of manpower, the technically skilled manpowers which you wanted in all aspects। अगर आप इंजीनियर है, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, यू डोंट नो अकाउंट्स, यू डोंट नो मार्केटिंग, यू डोंट नो फंडिंग रेजिंग मेथड्स, तो ये वेंचर कैपिटल से वो सब चीज़ें आपके आपके जो वीकनेस है ना, वो सब स्ट्रांग हो जाती है विथ वेंचर कैपिटल। बट ये इनिशियली नहीं आता, इसको आने को भी क्या लगता है, समय लगता है। ये कब तक रहता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट आता है और आईपीओ आने तक रहता है, आईपीओ आने के बाद वो अपना पैसा लेके निकल जाता है। तो बिजनेस वैल्यूएशन का गेम है गाइस, वैल्यूएशन अच्छा हुआ, कैपिटल वेंचर कैपिटल ने पैसे बनाए, निकलो बाहर, फिर आता है पब्लिक, उनके पैसे आ जाते हैं उसके अंदर। लेट मी जस्ट जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैंने कोई और पेज ओपन कर दिया है। I wanted to open this, but I think there's something wrong here. आप लिंक से ओपन कर पाओगे जब आप देखोगे। I've just given the name of the venture capitalist in India, and the best of all, who are basically successful in terms of investment in startups। ठीक है,
मैंने कहा इसके ऊपर हम एक पूरा पार्ट 2 बना रहे हैं, इसमें सिर्फ वेंचर कैपिटल की बात करने वाले हैं। I've kept it different, ठीक है। इसमें सिर्फ फंडिंग के रास्ते देख रहे थे ना हम लोग, तो हमने एंजल इन्वेस्टर्स देखे, हमने बूटस्ट्रैपिंग देखा, तीसरा आया वेंचर कैपिटल, चौथा आता है क्राउड फंडिंग। नाउ क्राउड फंडिंग क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म्स है। नाउ क्राउड फंडिंग के बेसलाइंस को आप देखने जाओगे तो जनरली क्राउड फंडिंग का नेटवर्क जो यूज हो रहा है अभी के लिए इज ओनली टू असिस्ट समवन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल यूज, क्योंकि बाकी सब पे गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस है कि वो स्टार्टिंग वो पैसे रेज करने के लिए वो यूज कर सकता है, बिकॉज इट्स इनडायरेक्टली पब्लिक इशू हो जाता है। तो होता क्या है ना, देर आर पोर्टल्स, देर आर वेबसाइट्स, जो लोग ये क्राउड सोर्सिंग करते हैं और क्राउड फंडिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्राउड फंडिंग के अंदर होता क्या है कि एक पोर्टल है जो आपकी एडवर्टीजमेंट्स करता है कि भाई इस बंदे को इतना फंड चाहिए फॉर इस बिजनेस के लिए, प्लीज सपोर्ट हिम। किसी ने 100 रुपया डाला, किसी ने 500 डाला, किसी ने 1000, $2, $5, $50, $100, $1000, और ऐसे करके उसको फंडिंग मिलता है। तो एंड देन आफ्टर डिडक्टिंग सम काइंड ऑफ अ, you can say a part of some commission to it, they give money back to it। मैं आपको वेबसाइट पे दिखा दूँ क्राउड, अब आप यहाँ पे आई होप यू कैन सी द सेम। अब ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है देयर आर मेनी इन इंडिया, मेनी, ठीक है। तो कोई भी एक को हम देखें, जैसे यहाँ पे है ये किटो, राइट। नाउ फंड फाउंडेड बाय कुणाल कपूर, वरुण सेठ, ठीक है, ये ऊपर भी थे अपने ये फेमस वाले, मुंबई बेस्ड है, फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैटेगरीज में, कम्युनिटी या सोशल प्रोजेक्ट्स जैसे एनजीओ, एनपीओ और चैरिटीज के लिए, क्रिएटिव आर्ट्स के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। नाउ ये लोग कनेक्टेड कैसे, देखो क्या लिखा है, दे आर ऑल्सो एनकरेज कॉर्पोरेट्स टू सर्च प्रोजेक्ट्स टू सपोर्ट एज अ वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग सीएसआर पॉलिसीज। सीआरसी के लिए कनेक्ट करते हैं कि भाई सीएसआर के लिए आप इसको हेल्प करो, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के ट्रैवल के लिए। पर सबसे ज़्यादा रनिंग चीज़ जो यहाँ पे है ना वो है चैरिटी। चैरिटीज कोई किसी कोई बीमार है, किसी को कोई डिजीज है, इन सम मनी फॉर some operations, and that is how this fundraisers comes up. You may get the links, you may have seen this ketos coming links coming up naturally, and you somewhere or other you might have done it also। देखो चार्ज क्या है उनका, 5 to 8% of the funds raised। मतलब यहाँ पे गेटवेज को यूज करने के लिए और फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए 6 से 8 टका यूज करना। अगर आप मैंने या आपने मैंने तो किए हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ समटाइम्स यू फील इट्स समथिंग यू शुड कंट्रीब्यूट। तो अगर मैंने 5,000 डाले तो फाइनली उनके हाथ में कितने आते हैं, 8%, 7% काट के आते हैं। दैट्स हाउ सिस्टम। देयर इज वन मोर ईयर इफ आई एम many crowdfunding platforms, I wanted to find one more, there is also one Milap करके, see I'm finding out something which you will have seen। तो ये मिलाप करके भी सेम है, सी बेसलाइंस अगेन यही चीज, 5 से 8 टका चार्ज करने का कैंपेन ओनर से, 120 कंट्रीज में फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, एंड दे हैव रेज्ड ओवर $12.7 million। दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। तो प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब में धीरे धीरे गवर्नमेंट के रेगुलेशन इसके ऊपर आने आ रहे हैं और आएंगे, और ये जितना इजीली फंडिंग कर पा रहा है, ले पा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल रेगुलेशन आने ज़रूरी भी है और आएंगे भी। तो ये एक, और आप अगर समझो कि मैं ऐसा कहूँ कि मैं एक ऐसा स्टार्टअप ला रहा हूँ जिसमें आप, दिस माई ड्रीम ऑल्सो, बट आई जस्ट शेयर विथ यू, इसमें सपोज कि टुडे people are more health cautious today, in the future people will be more health cautious because of, like, that's how the scenario is going on today in India and in the internationally। suppose आप ऐसा कहो कि if I'm dealing, if my child is drinking milk every day, using paneer or curd etc every day, and I am still not clear with respect to the quality of milk, quality of paneer what I am actually having, because इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंडिया की पॉपुलेशन, पीपल फील इट्स इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू सर्व दिस काउंट ऑफ पीपल एवरी डे फॉर मिल्किंग एक्सेट्रा, स्टिल वी ड्रिंक इट। अब इमेजिन करो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेके आते हो कि भाई आपके नाम का काउ, बफेलो, वॉट एवर यू वांट, इट विल बी ओन्ड बाय यू, वॉट एवर मिल्क इट प्रोड्यूस थ्रू दैट पर्टिकुलर कैटल और काउ, वो सब मिल्क डायरेक्टली आपको मिलेगा।
आप एक बाई करो काउ, हम उसको मेंटेन करेंगे, एंड आफ्टर मेंटेनिंग जितना वो प्रोपोर्शन का है उतना आपको मिलेगा। आपको 4 रखना 4 रखो, मतलब यू हैव टू बाई इट एंड यू जस्ट हैव टू पे अस मेंटेनेंस कॉस्ट। इट विल बी योर ओन कॉस्ट टू, मतलब कैसा हो गया ये, काउ आपकी है, हमने मेंटेन किया, इट्स लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट आप हमें पे करो और मिल्क आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर अगर आपके पास इनिशियल लेवल पे फंड्स नहीं है टू डू द मार्केटिंग एंड ऑल दैट, यू मे गेट सम क्राउड फंडिंग टू दैट। जब कोई इन्वेस्ट ना करे तब क्राउड फंडिंग भी रास्ता हो सकता है 6-8% के लेवल पे। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, इसीलिए जनरली ये पॉसिबल हो रहा है ओनली फॉर व्हाट, जनरली पॉसिबल हो रहा है फॉर डोनेशन पर्पज मोर मोर ऑफन देन अदर्स, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी वो क्या था, अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशंस, व्हाट आर द वेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। तो बूटस्ट्रैपिंग इज द फर्स्ट वे, angel investment is the second way, then you have venture capitalist, and then you have crowdfunding. These are the four common ways of raising finance, ठीक है। हर एक पे एक लिंक है और वो हर एक लिंक में आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी उसके प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट इज पिच प्रेजेंटेशन। नाउ पिच प्रेजेंटेशंस के लिए एक्चुअल पिच प्रेजेंटेशंस के 2 वीडियोस फ्रॉम जोन साइड ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं। ट्रस्ट मी, यू विल लव इट, द इंटरेस्ट विल बी मोर बेटर। जब मैं आपको भाषण दूँ उससे बेटर लगेगा आपको, उसको एक बार देखना, इससे आप थोड़े मोटिवेट भी हो जाओगे, क्योंकि हर एक बंदे के अंदर इंक्लूडिंग मी एक एक अंदर जिंग होता है कि कभी ना कभी अपना खुद का स्टार्टअप जैसा कोई बिजनेस, समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव होना जरूरी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं ये वीडियो प्ले नहीं करता, मैं आपको इसे चीज देता हूँ यहाँ पे, दिस इज बेसिकली दैट वीडियो। आप उसको वीडियो देखना एंड प्लीज हेल्प मी टू जस्ट जस्ट शेयर सम व्यूज ऑफ योर्स टू मी आल्सो आफ्टर यू फिनिश दिस चैप्टर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब है ये पिच प्रेजेंटेशन। द नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन इन स्टार्टअप फाइनेंस इज पिच प्रेजेंटेशन। अगर आपने किसी से पैसे मांगे तो वो आपको कहेगा ठीक है, मुझे तेरे बिजनेस के बारे में डिटेल्स बोल, अब तू मुझे मिल और मैं तेरे बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। अब दैट इज नथिंग बट अ पिच प्रेजेंटेशन। पिच प्रेजेंटेशन यानी आपका प्रोडक्ट, आपका स्टार्टअप आइडिया को लेके कम इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन टर्म्स ऑफ योर एंजल इन्वेस्टर्स, योर वेंचर कैपिटलिस्ट, or anyone, any of your friends, etc. And try to come on the pitch, present your business idea, and try to convince them to invest in you. तो practically कैसे होता है ये? Just giving a small idea to that. Just mute it as of now. This is basically like it happens in a small level pay. You have investors in front of you. You have the person who wants to who wants the money making a pitch presentation in front of you. There are investors or capitalists who are asking questions against the same. Then you will be giving him, okay, this is the idea, this is my business, this is the growth, and I will be ready to give you my equity of 50% equity to you, ready to give you 50% equity to you, and I want 20 crores from you. Then the bargaining starts, the bid starts, and finally, if someone is interested in your business, then you will start raising some questions, some negotiations, and finally, you get some funding in your business. This is what you generally do in a startup finance. तो ये एक छोटा सा 2 वीडियो है 25-25 मिनट का, एंड आई थिंक मैंने बहुत सारे वीडियोस असेस किए एंड आई थॉट दिस इज द बेस्ट वन फॉर यू ऑल टू गेट इन चैनल ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस टोटली, ठीक है। दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैव नॉट प्लेड एज सच, बट आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफिंग टू इट। लेट्स अंडरस्टैंड इट theoretically also. Now, pitch deck is a short and brief presentation of the prospect of the company to invest to the investors with the objective of convincing them for the investment. I repeat it again. Pitch deck, मतलब pitch presentation, is a short and brief presentation of the prospect of the company to the investors with the objective of convincing them for the investment.
quite fair. It can be made either a brief PowerPoint presentation or verbally or face to face or online. हमने जो देखा था वो फेस टू फेस था, अभी जो वीडियो पे दिखाया इट मे बी और पीपीटी, अभी तो आज के ज़माने में सब जूम पे होने लगेंगे या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फ्रेंड्स के साथ होके तो वर्बली एक्सेट्रा। मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। Ideally, a pitch presentation should include idea and the details of the startup in the brief presentation as follows. तो क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए वो यहाँ पे हमने ऐड किया है। अब मैं आई वॉन्ट यू टू बी मोर नेचुरल इन दिस काइंड ऑफ स्टफ। मैंने है ना आज से 1-2 साल पहले, बिफोर अराउंड 18 months back, I had a small startup. You can say a startup in that case also, that will help you to just go through these pointers. I've observed two things. तो एक क्या था कि the graduates, I'm into CA coaching only, but if you talk about the graduates who are working in CA firms, the quality of graduate in terms of experience and in terms of skill was reasonably less. मतलब the a graduate does not know what is income tax return all about. A graduate does not know what is the meaning of the word TDS. A graduate does not know or have not seen any portals, websites, MCA portals, etc. There's lots of things he does not know, the A to Z of accounting कैसे होता है, tally software या कोई भी top 3 software कैसे चलते हैं. So what we did, we tried to tie up with some CA firms. Along with it, we tied up with the commerce classes who are into TY become coaching more. Not the CA coaches, but people who are into TY become coaching. मतलब जो लोग 150 180 के बाद जो TY पढ़ाते हैं ना, we targeted them. What happened next? We tried to make these people understand that even if you even if you become a graduate, the problems what is basically being faced by the CA firms to accept you as an employee is that you lack the practical exposure to the basic stuff what you need, and that is where that was the idea, to make a TY graduate capable of serving a CA firm or a corporate at the lower level class of accounting and basic works. तो उसके लिए we I employed some of my students who are already chartered accountants along with some big fours and top 20 firms के auditors etc. And we had 8 to 10 aspects पे a designed course. And you won't believe it, GST पे, income tax पे, TDS पे, accounting पे, presentation पे, interviews के लिए, CV making, ऐसे 8 अलग अलग aspects pick किए मैंने, और वो 8 aspects पे we kept around 20 lectures to make them aware of what a person expects from you if you're a graduate and going to go outside a BCom, BAF, etc. And it worked very well. I did it for 1 year, but just because of inclination to this CA coaching more, मैं वो ज़्यादा time ही नहीं दे पाया at that point. But in the first year, we got around 40 students who were with us in 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 this learning curve. But unfortunately, the drawback what I faced after 1 year was, even after teaching them so much, finally when we shifted over to the interviews to these firms etc., still the firm was like, still they are not that better and still they require practice. So it was something which was a problem faced by us कि हम फिर भी वो नहीं कर पाए जो करना जरूरी था, कि इतना पढ़ाने के बाद मतलब it was like 20 sessions were less, we need a 1 year full course to teach them. Anyways, मैंने एक आइडिया बेसलाइन दिया, क्यों? आपको पिच प्रेजेंटेशन समझाने के लिए. तो what happens अगर मैं इस बेसिस पे फंडिंग लेना चाहता हूँ, if I want to have 100 laptops with me, I want a big classroom for the same, I want to have licensed certification course for the same, I want to tie up with colleges, I know the marketing team for the same, तो मेरे को फंडिंग चाहिए. अब वो फंडिंग के लिए मैं जा रहा हूँ फॉर माई पिच प्रेजेंटेशन, तो पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन होना जरूरी. सी नाउ आई हैव अ माइंडसेट. आपको माइंडसेट पता है क्या बिजनेस लेके हम जा रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट गोज विद टर्म्स ऑफ व्हाट यू रिक्वायर नॉर्मली. आई रिपीट, पिच प्रेजेंटेशन में ऐसा ही होना जरूरी नहीं है. सिर्फ आइडियल ब्रीफ अप दिया है क्या क्या होना चाहिए. पहला इंट्रोडक्शन, कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, मैंने पहले प्रोफेशन में क्या क्या काम किए, मेरा नॉलेज, एम आई इन एजुकेशन सेक्टर और नॉट, व्हाट आई हैव डन इन दैट सेक्टर, etc etc. It's my first part should be there in my pitch presentation. Possibly a 30 second और 50 second में ही खत्म हो जाना चाहिए. टीम, मेरी टीम में कौन कौन लोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने उसके अंदर मेरे जो टीचर्स थे वो मेरे टीचिंग वाले टीचर्स नहीं थे. वी केप्ट द टीचर्स हु आर फ्रॉम द सीए फर्म्स.
CA firms यानी we kept it from ENY, we kept it someone from PwC, we kept it said अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 to 15 जो रिलायंस के ऑडिटर थे, मेरा बंदा है जो रिलायंस में ऑडिटर का काम कर चुका 3 साल, ऐसे लोगों को हमने हायर आउट किया था फॉर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सो दैट द फील्ड हैज टू बी फ्रॉम दैट पीपल हु आर नॉट इनटू टीचिंग बट इनटू प्रैक्टिकल पार्ट, जस्ट टू गिव देम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू मोर ऑफन. देन द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम द टीम मैंने बोली, इंट्रोडक्शन बोला, प्रॉब्लम में क्या था, प्रॉब्लम इज लाइक द ग्रेजुएट्स आर नॉट एबल टू गेट सोल्ड आउट in the industry because of lack of practical exposure. So that's the problem and that's the potential. इतने बड़े आप मानोगे नहीं, सीए करने से 10 गुना नहीं 125 गुना ज़्यादा लोग ग्रेजुएशन वाले थे, तो दैट वाज अ ह्यूज पोटेंशियल एक्चुअली. सोल्यूशन जो मैंने आपको कहा, इनको इस बेसिस पे ट्रेनिंग देना और इनको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना, पैन नंबर कैसे लेना, जीएसटी नंबर कैसे लेना, जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना, आपको खुद को प्रेजेंट कैसे करना, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू जस्ट मेक समवन इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट टू सम एक्सटेंट, हर तो वो सब चीज़ों पे काम करना जिससे आप आप खुद को बेच सको इन टर्म्स ऑफ सर्विस. दैट वाज basically the part out at a very cheaper cost. Marketing sales, what we did in marketing, we tied up not with, we never did Facebook marketing etc. We tied up with directly the coaching institutes. तो coaching class was the first marketing part जहाँ पे हमने उनको target किया, the colleges which has the students who are more of like attending not doing chartered accountancy courses in the colleges etc. वो target किया. And second line पे हमने CA firm से target किया. And what our channel was two-way revenues. One revenue is from the students by serving them, and second part of revenue was the CA firms by giving them good quality graduates to work for, because that's the problem faced by mid-sized firms a lot. This is how, and based on this we can create our milestone with the budgets, income statements, balance sheets to give your cash flows when we are going to start the cash ins, cash flows, मेरा ROI क्या होगा, मेरा investment क्या होगा, capex कितना होगा, and all that part. Coming to competitions, is there anyone who is into competition with you? If yes, उनका baseline क्या है, हमारा कैसा है, उनका growth क्या था, कब से आए थे, कब से है, all this stuff. And your business models, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे करेंगे काम, हम रेवेन्यू जनरेट कैसे कैसे कर रहे हैं, 2-way 3-way 4-way, एंड ऑल दैट कम्स अप. योर टारगेट ऑडियंस की एज क्या होगी, तो जनरली वी हैव एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 इन आवर एज ग्रुप्स मोर ऑफन रादर देन दस. और इसके अंदर हमने और एक चीज़ ऐड की थी इंटर्नशिप्स के लिए भी. तो दैट सेकेंड प्लान वॉज टू ऐड टू लेट अ स्टूडेंट get the best of internship what he wants. And the last part comes up here is your financing. So I've just tried to give a small blend which makes your theory simpler. अब ये थियोरी के अंदर हमने क्या क्या देखा, तो आप खाली एक एग्जांपल आपके, मैंने जो बिजनेस का वो या आपको जो बिजनेस वो उसको मैन में रखो, हेडर्स को याद रखो और अपने लाइन में लिखो. दैट्स हाउ नेचुरल यू हैव टू बी इन दिस काइंड ऑफ अ थियोरीज. तो हमने पहले बोला इंट्रोडक्शन, हमारी टीम, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द मार्केट, दैट इज द पोटेंशियल, उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, मार्केटिंग कैसे करेंगे, हमारा प्रोजेक्शंस क्या होगा, व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स टू द सेम, एंड our model of doing business, and finally the financing part. तो ये एक आइडियल है, there is no conclusions to this क्या होना चाहिए क्या नहीं, but this is a standard output. Coming to startup in India now, तो it's like अब startup India मतलब क्या, तो it's like government, how is government supporting startup? Government can't define a startup, but government is supporting a startup here. तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन कवर करना पड़ेगा कि एलिजिबल स्टार्टअप्स क्या होंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड दिस स्टफ. Introduced by PM of India on his address of 15th of August, the Startup India program or initiative is launched with the aim of simplifying or improvement in ease of doing business. Yes. तो हमारी जो रैंकिंग है ease of doing, उसमें improvisation के लिए we are targeting this. The major objective is to discard restrictive policies like licensing, land permission, foreign investment proposals, environment clearance, etc. As per the program, an entity is registered is eligible to register as startup finance. I have just missed that word. अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसके ओपन हुए हुए 10 साल से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल है. मतलब उसका कंडीशन क्या है, उसके बिजनेस नेचर ऐसा होना चाहिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, वो आप इजीली प्रूव कर सकते हो अगर आप में कुछ भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पढ़ आ जाता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली 10 साल से नीचे, 100 करोड़ के नीचे और इंडिया में होना चाहिए. ये आपका बेस लाइन है स्टार्टअप. अब स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल भी है, उसी से ये एक्स्ट्रा लिया गया है. अब यहाँ पे आपका
पहला पड़ाव पूरा होता है। इतना ही कंटेंट और एक आएगा आपको थोड़ी देर में, और आज के दिन में यहाँ पे आप वेंचर कैपिटलिस्ट का भी पार्ट कवर करोगे। नाउ आई जस्ट वांटेड टू मेक इट जस्ट लाइक अ थियोरी, अगेन ट्राइंग टू ऐड समथिंग मोर टू इट, बट आप इसको इमेजिन करो एग्जाम डे पे यू कैन स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 10 minutes फॉर दिस चैप्टर, 10 minutes, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, बट यू हैव टू गेट दैट 4 marks ऑल्सो। तो बाय हार्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, पर हर एक की समझ होना जरूरी है। आई रिपीट दिस स्टफ, स्टार्टअप का इंट्रोडक्शन, manner of raising finance through startups, bootstrapping, angel investing, venture capitalist and crowdfunding, इस पे फोकस किया। पिच प्रेजेंटेशन बिकम्स योर नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन, इसके अंदर हमने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच प्रेजेंटेशन और उसका कंटेंट क्या होता है वो देखा। एंड लास्ट पार्ट, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव बाय ऑनरेबल पीएम एंड दैट का पे कंडीशन क्या है वो देखा। I hope you will see that. To comment it out in your ideas. I'll be happy if you can share some ideas of startups, what you have in your brains that will make our sessions more interactive. हम उसको लाइव, जब अभी एग्जाम चल रही है आपकी तो हम लाइव नहीं आ रहे हैं, पर उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। यू कैन मेक अ प्रेजेंटेशन, वी कैन स्पेंड सम टाइम ऑन दैट एक्टिविटीज टू। ठीक है, आई सी यू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय।